Hello student, welcome back to our channel KCYC. In this video, we will continue with your sets chapter. We will be doing with your last exercise 1.4. ये एक्सरसाइज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें का स्कूल एग्जाम्स में दैट इज़ 4 मार्क्स का सम्स आता ही है. What you need to understand in this exercise is your union, intersection and complement of a set and the Venn diagram. तो let's start with the exercise 1.4. Exercise 1.4 करने के पहले we'll start exercise 1.4 later. उसके पहले I'll teach you something which is this exercise is very very important. कोई भी स्कूल रह दो पक्का इसमें का 3-4 मार्क्स का ये सम आता ही है. Suppose you write U is a set of x such that x belongs to natural number and x is less than or equal to 9. This is my question I'm preparing. Then you need to got over this is A is a set of x such that x belongs to वापस लिख दिया यहाँ पे natural number and x is less than 5. और एक लिखता हूँ that is B is a set of x such that x belongs to वापस natural number and I'll be going with different question that is 1 and over here less than or equal to 6. Now what we need to find out is you should tell me what is A. This is U. U मतलब A union B. This is A. This is called as intersection. Then you should say what is A dash का मतलब है A complement और B complement. पहले basics करते हैं. We need to understand this basics and then we'll go with the exercise 1.4. ये आपका कौन सा फॉर्म है? ये सेट बिल्डर और रूल मेथड में है. So you write over here this way. U is a set of x मतलब इसके अंदर x भरा हुआ है. Says that x belongs to natural number मतलब सब natural number. This is less than or equal to 9. You have to write all the natural numbers less than or equal to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो this black में जो लिखा ना ये आपने अभी उसका यूनिवर्सल सेट लिखा. Then over here also A is a set of x such that x belongs to natural number. X is less than 5. तो आपको पूरा नेचुरल नंबर्स लिखना है जो 5 से छोटा है. 1, 2, 3, 4. ओनली 4 5 नहीं लिखोगे बिकॉज यहाँ पे लेस देन 5 बोला है. यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू इसलिए मैंने 9 लिखा. यहाँ पे B is a set of x such that x belongs to natural number. Where is x? That is greater than 1, less than 6. So you have to write all the numbers. That is 2, 3, 4, 5. यहाँ पे 6 आएगा. So first you should know to convert this into listing form. तो ये हमने उसको लिस्टिंग मेथड में निकाला. Once ये ब्लैक वाला जो अगर आपने लिखा है if it is right then you can think of आगे का सोच सकते हैं कि वो राइट होगा या रॉन्ग होगा. फर्स्ट A यूनियन B. प्लीज पे अटेंशन. A यूनियन B ये तुम्हारा A है. दिस इज ओवर या B है. यूनियन मतलब दैट इज यूनाइटेड. ठीक है मतलब सब कुछ मतलब A में जितना टर्म्स है B में जितना टर्म्स है इधर का और इधर का टर्म सब एक जगह पे लिखो. दैट इज कॉल्ड एज A यूनियन B. A U is for union, that is A union B. तो यहाँ पे और यहाँ पे that is 1, 2, 3, 4, 5 and this is 6. That's all. The next question is this is A. इसको बोलता है intersection. What do you mean by intersection? अगर दो lines draw करो, this is called as the point of intersection. What do you mean by point of intersection? मतलब ये point ये लाइन में भी है और ये लाइन में भी है. तो इधर A और B में you have to check कि A और B में कौन सा ऐसा नंबर है जो सेम है. If you check 2 है 2 है 3 है 3 है 4 है 4 है. तो intersection is 2, 3 and this is 4. Then you got over A complement. Now A complement A is over here. जब complement बोलेगा तो आपको universal set आएगा ही आएगा. So what you have to do? You have to compare this A with this universal set. लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको यहाँ पे 9 टर्म्स है और A में कितना टर्म्स है 4. तो कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो A का उल्टा लिखने का दैट इज कॉम्प्लीमेंट. तो ये जो 4 टर्म्स है 1, 2, 3, 4 इसमें का वो नहीं लिखने का. मतलब यू हैव टू कंपेयर ओवर हियर. दिस इज 1, 2, 3, 4. ये चारों टर्म्स A में है तो बचा हुआ जो टर्म्स है the remaining term that is 5, 6, 7, 8, 9 that is your complement. What will be B complement? What is B complement? So what is B complement? Again you go with your B over here. Compare this with the universal set. Again 9 terms है. 9 terms में B में कितना terms गया? 1, 2, 3, 4, 5. 5 terms गया मतलब कौन है 2, 3, 4, 5, 6. तो आपको ये जो terms है
ये नहीं लिखने का, मतलब बी में जो है वो नहीं लिखने का, कॉम्प्लीमेंट वाला सिंपल लैंग्वेज में बचा हुआ ऑपोजिट टर्म्स, तो कौन सा बच गया 1, देन 2 3 4 5 6 तो आ गया, व्हाट इज लेफ्ट इज 7 8 9, दिस इज कॉल्ड एज बी कॉम्प्लीमेंट। और एक आपको कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज एन ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड एज एन ऑफ, यहाँ पे आगे लिख देता हूं, this is called as n of b, then this is called as n of a union b, this is called as n of a intersection b। n of a का मतलब क्या, number of elements in set a। तो ये जो set a है ना, इसमें कितना टर्म्स है, कितना टर्म्स है 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स है ना, तो you have to just write 4। keep in mind you should not put this brackets, ये ब्रैकेट्स नहीं डालने का रहता है, इफ यू पुट दिस ब्रैकेट तो रॉन्ग है। एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ये 4 जो लिखा है मतलब जो सेट ए है ना उसके अंदर 4 टर्म्स है, और गलती से अगर आपने ब्रैकेट डाल दिया तो इसका मतलब है इसमें एक ही टर्म है जो 4 है। यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस, सो यू शुड नॉट पुट दिस ब्रैकेट। एन ऑफ बी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन बी, हाउ मेनी आर देयर 1 2 3 4 5, तो यू शुड राइट दिस एज 5। n of a union b, a union b इधर है, कितना टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, so you have to write over here 6। n of a intersection b, number of elements in a intersection b, कितना टर्म्स है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3। तो you got a formula for this one over here, जो आपका एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट में आता है, that is n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। So if you want you can just put your values, just confirm करने के लिए, what is a union b, that is 6, n of a कितना होता है 4, n of b कितना है 5, और ये कितना है 3, चेक करो आंसर मैच होएगा। 4 plus 5 is how much 9, 9 minus 3 is how much 6, चलो ये कंफर्म करने के लिए बताया। सो दिस इज योर फॉर्मूला विच वी विल स्टार्ट नाउ विथ एक्सरसाइज 1.4 के साथ। 4, what they are given over there, that is n of a is equal to, how much is n of a, that is equal to 15, then they given that is n of a union b, this is equal to 29, n of a intersection b is equal to 7, and you have to find n of b। It's that simple, कुछ ही नहीं करना, खाली फॉर्मूला लिखो, that is since n of a union b is equal to n of a plus n of b, and over here याद रखो यहाँ पे साइन क्या लिखने का है, that is माइनस होता है यहाँ पे, तो keep this in mind, बहुत जन मिस्टेक करते हैं। So just do your fill in the blanks, this is 29, n of a this is 15, n of b we are supposed to find, n of a intersection b this is 7, finish, this is over 29, 15 minus 7 you can do it over here only, that is 8, plus this is n of b, you can take this 8 on my side, that is minus 8 is equal to n of b, and finished you say this is n of b is equal to 21। so basically formula आ गया, तो just आपको value डालने का है, I will get your answer, this is how you have to do the sum। if you see sum number 2, in a hostel there are 125 students, तो आप लोग है ना ऐसा लिख लो, that is total number of students that is equal to 125, out of which 80 drink tea, so tea कितना लोग पीते हैं, that is 80, you can write over here, then you can say over here 20 drink, that is 80 drink tea, 60 drink coffee, so कितना लोग कॉफी पीते हैं, that is coffee, that is equal to 60, and both 20 drink both tea and coffee, you can say over that is both tea and coffee, ये तुम्हारा क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, that is 20। now you need to tell over here कि find the number of students जो कुछ नहीं पीते। now there are two ways to do this, ये या तो डायग्राम से करो या विदाउट डायग्राम, that is फॉर्मूला में। अगेन आई रिपीट, या तो डायग्राम या तो फॉर्मूला, दोनों एक साथ नहीं यूज करने का है। सो डायग्राम से इट्स वेरी इजी, व्हाट आई पर्सनल फील। सो हाउ विल गो ओवर हियर, दैट इज अ लेट, we'll assume over here that is let the students who drink tea be, that is we'll take that alphabet as T, and let the student
who drink coffee, those who drink coffee, B will take it as C. Now what will do over here बच्चा लोग, ये है ना, ये तुम्हारा हो गया वेन डायग्राम. मतलब सपोज एज्यूम करो ये तुम्हारा स्कूल का कंपाउंड है, इसमें ये जो है ना ये टी वाला बच्चा लोग है, तो ये करेक्ट दिस इज टी, और ये ऐसा सर्कल के ऊपर सर्कल बनाने का, और ये तुम्हारा कॉफी वाला बच्चा लोग है. जब भी वेन डायग्राम, एक बार खाली इसको 3 जगह को फिल कर दो, यू कैन आंसर एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट. ऑलवेज पहला ना ये फिल अप करने का, ऑलवेज फर्स्ट ये फिल करने का. तो वो बच्चा लोग जो चाय भी पीता है और कॉफी भी पीता है, दे सेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु ड्रिंक बोथ, तो दिस इज ओवर हियर 20. नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट ड्रिंक टी, तो टी में कितना था, ये सर्कल में ना बच्चा, ये सर्कल में 80 आना था, बट 20 तुम्हारा पहले से आ गया, सो यू शुड से 80 minus 20 एंड दैट इज यू शुड राइट 60. कॉफी, कॉफी के लिए कितना है 60, बट 20 पहले से लिखा है, तो 60 minus 20 एंड दिस इज इक्वल टू 40. तो दिस इज 60 है, ये सिर्फ चाय पीता है, 40 सिर्फ कॉफी पीता है, और 20 जन दोनों पीता है, और टोटल स्टूडेंट्स कितना है 125. तो फर्स्ट हम लोग सर्कल में ढूंढेगा कितना बच्चा लोग है. therefore you should say therefore the number of student who drink at least one drink, कुछ ना कुछ तो भी पीता ही है, एटलीस्ट वन ड्रिंक. व्हाट डू मीन बाय एटलीस्ट वन ड्रिंक, आइदर दे ड्रिंक टी और दे ड्रिंक कॉफी और बोथ. तो सर्कल में जितना है वो लिखने का, दैट इज 60 plus 20 plus 40, that is 60 plus 40 is 100, that is you get 120. अभी कॉमन सेंस है, ये तुम्हारा स्कूल का कंपाउंड ऐसे ही बोला मैंने, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, मतलब ठीक है. तो ये यूनिवर्सल सेट में टोटली कितना बच्चा लोग गया था 125. 125 में सर्कल के अंदर कितना है 120. अगर सर्कल के अंदर 120 है तो बाहर कितना रहेगा, कितना रहेगा ओनली 5. तो लोग बाहर क्यों है, बिकॉज दे डू नॉट ड्रिंक आइदर. therefore you should say over here, therefore number of student who do not drink tea or coffee, so totally कितना बच्चा लोग था 125, उसमें का 120 जन कुछ ना कुछ तो भी पीता है, सो कितना स्टूडेंट है, therefore the number of students who do not drink tea or coffee is how much 5. सपोज और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे, हाउ मेनी स्टूडेंट ड्रिंक ओनली टी, ये एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूं ब्लू कलर में, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक ओनली टी, कितना लोग है, सो सिर्फ चाय पीता है, तो दिस इज द फिगर. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज हु ड्रिंक ओनली टी कितना 60. अगर आपको पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज हु ड्रिंक ओनली कॉफी, फर्क पड़ेगा, चलो कॉफी और ओनली कॉफी में, तो ओनली कॉफी अगर आपको पूछा तो ये 40, और कॉफी कितना लोग पीता है 60, और ओनली कॉफी कितना लोग पीता है 40 अगर आपको पूछा रहेगा. तो दिस ब्लू वन आई डन एक्स्ट्रा. सो दिस इज हाउ विद डायग्राम यू हैव टू डू योर सम नंबर 2. लाइक सेकंड के जैसा ही ये 3. इन एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश. तो आपका क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, तो इंग्लिश में कितना बच्चा लोग पास हो गया, दैट इज 50 पास्ड इन इंग्लिश. 60 पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कितना पास हो गया 60. फिर बोला 40 पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, दैट इज बोथ दैट इज इंग्लिश एंड मैथ्स. तो इंग्लिश और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट्स में कितना लोग पास हो गया 40, बस इतना दिया है. Then they are given over here, none of them failed in both, find the number of students who passed in at least one of the subjects. मतलब टोटली कितना लोग था, मतलब कोई ना कोई या तो इंग्लिश में पास हो गया या तो मैथ्स या तो दोनों में. तो we'll assume over here that is let the number of students who passed in English, that the number of students who passed in English, हम लोग इसको ले लेंगे that is B, E, and we'll assume over here that is let the number of students who passed in maths, P, हम लोग इसको ले लेंगे as M. Now again we'll draw with your Venn diagram. So that's simple. A Venn diagram में box बनाने का, same like the second one. This is for English, this is for maths. So this is English E,
मैथमेटिक्स इज m, ये u यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ऑलवेज ये फर्स्ट क्लियर करने का, दिस इज 40, ये देखो यहाँ पे। फिर इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में 50 दिया था, तो दिस वन विल बी 50 बिकॉज 40 उस सर्कल में पहले से है, इफ यू चेक, -40 दैट इज इक्वल टू 10, एंड ओवर हियर मैथ्स के लिए कितना है, 60 है, तो 60 माइनस दिस 40 एंड दैट इज इक्वल टू 20। कोई फेल ही नहीं हो गया, फेल ही नहीं हो गया, मतलब यहाँ पे बाहर में कोई बच्चा ही नहीं है। Therefore, the number of student who passed, this is what they asked, who passed in at least one subject. तो those who passed at least in one subject, मतलब जितना सर्कल में सब लेना है, you take this is 10 plus 40 plus कितना हो गया 20, that is 40, 50, 60 and 70. Therefore total एग्जाम के लिए कितना बच्चा लोग बैठा था, that is 70. This is how we have to do, because कोई फेल ही नहीं हो गया, मतलब यहाँ पे बाहर कोई है ही नहीं, सब लोग पास हो गया, मतलब टोटल, मतलब सब लोग अंदर था, या तो एक सब्जेक्ट में पास है, या तो सिर्फ इंग्लिश में है, या तो इधर फर्स्ट ओनली इन मैथ्स, या तो बोथ. सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज दिस, दैट इज 10 plus 40 plus 20, and this is how you have to do with diagram. 4. Again our same one. A survey was conducted to know the hobby of 220 students. Totally उनके पास 9th standard में 220 students, out of which 130 informed कि उनका hobby is rock climbing. तो this is rock climbing. तो मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, this is rock climbing as R. rock climbing को कितना लोग को पसंद है, that is 130. Then what do you get over here? And then rock climbing is 130. 180 student inform their hobby as sky watching. So this is sky watching. I will put as S. So this is 100 and कितना बच्चा? This is 180. And both, ठीक है? That is when we say both, it is actually, when we say both, it is actually N of R intersection S. ये होता है. और both there are 110 students, those who liked both, that is 110 students. फिर क्वेश्चंस क्या क्या पूछा हम लोग उसको बाद में ही देखते हैं. फर्स्ट विल डायरेक्टली स्टार्ट ओवर हियर विथ योर डायग्राम. तो अभी डायग्राम वी विल स्टार्ट विथ द डायग्राम. सो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट. ये आ जाएगा, दिस इज रॉक क्लाइंबिंग, दिस इज स्काई वॉचिंग. ठीक है, तो यू कैन राइट दिस एज R, दिस एज S. मैंने बोला सबसे पहले ये लिखने का 110. रॉक क्लाइंबिंग कितना है 130, उसमें का 110 इधर चले गया, सो दिस इज 20. इधर कितना है 180, ये देखो यहाँ पे 180 माइनस 110, दिस इज 70. मैं क्वेश्चन रीड भी नहीं करता है. देयरफॉर टोटल सर्कल के अंदर कितना है वो देखिएगा. देयरफॉर यू शुड राइट ओवर, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड in at least one activity. So कितना बच्चा लोग है जिनको कुछ ना कुछ तो भी पसंद ही है, that is this is 20 plus 110 plus 70, 80, 90 and 100, that is 200. तो 200 of them are there inside the circle. टोटल स्कूल में कितना है 220. therefore बोलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब उनको कुछ पसंद ही नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट who do not like either. Who do not like either will be 220 था, 200 जन सर्कल के अंदर है, this is 20. अभी क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने पूछा हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्क्ड कि लेट मी रीड इट आउट व्हाट दे आस्क्ड, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी. ने फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड, that is there are how many who do not have any of the two hobbies. Therefore the number of students who do not have any hobby is how much 20. फिर क्वेश्चन बोला है how many of them follow the hobby of rock climbing only. only वर्ड है बच्चा लोग. so number of student who like ये याद रखना, ये वर्ड only rock climbing. तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली रॉक क्लाइंबिंग ना बच्चा, तो ये लेने का, ये दिस इज, ये मतलब ये सर्कल में ये जो पार्ट रहता है ना, ये दैट इज 20. फिर और एक क्वेश्चन बोला है उसमें भी ओनली है, हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली. सो अगेन
number of student who like only sky watching, तो जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है, तो अभी आप लोग बोलो देख के क्या आएगा, 20 आएगा, 110 आएगा या 70, क्या आएगा? हाँ, that is you will have over here, that is 70, and this is how you have to do. तो personally I find up Venn diagram से करो, you can answer any questions. So this is how you have to do again this sum with Venn diagram. So this is your sum number 5 with exercise 1.4 का डायग्राम ऑलरेडी दिया है. ये सर्कल है, ये ए है, ये सर्कल बी है, ब्लू कलर्स में लिखा, और ये फुल यूनिवर्सल सेट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड व्हाट इज ए. तो ए में ये सर्कल जो दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाला सर्कल लाइक ए, दिस इज योर सर्कल, ये वाला, ये जो रेड कलर में है दैट इज योर सर्कल ए. तो सर्कल ए में जितना टर्म्स है, तो यू हैव टू राइट ऑल द टर्म्स ओवर देयर, दैट इज वो ए और बी नेम्स है बच्चा लोगों का, दैट इज एक्स, वाई, जेड, एम एंड एन, दैट्स ऑल. What is B? सेकंड क्वेश्चन पूछा what is B. अभी जो जो आपको B के अंदर दिखता है सब ब्लू कलर में, that is M. You can write in any sequence P R Q. Then the next question they asked what is A union B. A union B मतलब A में और B में, A में और B में जितना है सब लिखेगा, that is X Y. Union बोलेगा तो united, everything will come together, that is M N P R. This is Q. The next question they asked what is U. U बोलेगा तो यूनिवर्सल सेट, मतलब जो बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर जितना है सब सब, मतलब ये और ये दो बाहर है वो भी आ जाएगा. राइट, एनी सीक्वेंस कैसा भी लिखो लेकिन सब आना चाहिए. X Y Z, this is M, this is N, this is P, this is R, this is Q, S and T. The next question they asked what is A complement. Now what do you mean by A complement? मतलब सर्कल A, ये वाला जो सर्कल है ना, ए के अंदर जो टर्म्स है वो नहीं लिखने का, कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट, अब ए को छोड़ के जितना, मतलब ये टर्म्स नहीं लिखेगा, बाकी सब लिखेगा. तो दिस वन विल बी पी आर क्यू एस एंड दिस इज टी. दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड दैट इज व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो ये बी में जितना टर्म्स है ना अभी वो नहीं लिखने का, बाकी सब B का टर्म्स नहीं लिखने का, बाकी सब दैट इज X, Y, Z, S and T. The next and the last question in this exercise they are asked what is A union B complement, the whole complement. What is A union B, the whole complement? तो first check करो कि what is over here is A union B. तो A union B बोलेगा तो ये full is A union B. तो ये जो मैंने मार्क किया ना, इसको नहीं लिखने का, बचा हुआ टर्म, तो दो ही टर्म्स बचता है, दैट इज S and this is T. So this is how we have to do this exercise. कॉम्प्लीमेंट वापस एक बार बोलता हूँ, अगर बोला है आपको A कॉम्प्लीमेंट, तो इफ यू डू विद A कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो सर्कल है ना A, अभी देखो रेड कलर में बताया, ये A नहीं लिखने का, मतलब जो मैंने रेड कलर में लिखा वो नहीं लिखने का, बाकी सब टर्म्स आपने लिख दिया. सो दिस वाज P, दिस इज R Q S T. सो P Q R S T all the terms. Same with B complement and same with A union B, the whole complement. So this was your exercise 1 point, the last exercise, that was your exercise 1.4. Hope you understood. Baki ka the next video we'll do with the problem set. So we finish with this video over here. Bye bye, take care, have a nice time.